ایک ایسے مقرر کا سامنا کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد جناب حافظ و قاری محمد اسلم صاحب ہے. ان کے آنے سے پہلے میرے دل سے یہ شعر نکل رہا ہے کہ ہر خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، ہر خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے. یہ وہ خطیب ہے جن پہ خطابت ناز کرتی ہے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے یار تھوڑا ٹائم رہ چاہت رہا ارے یار تھوڑا رہ چاہت رہا. یہ تنویر بھائی تھوڑا رہے ہو تو مرتبہ 5 منٹ رہے ہو تو ابھی آنا ہے. ابھی آنا پڑے گا. ارے یار تھوڑا نام تو پڑھے چاہت رہے تو ہم گھرے جائیں ہماری سلائی بھائی وہی پورا ہل گیا. ہلو، منبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء کرام و شعراء اعزام، نقیب جلسہ، جو بھی رہے ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی بڑے شاندار انداز میں نبی کی بات کہنے کے لیے آل نبی نے مجھے دعوت دی ہے. نبی کا ذکر کرنے کے لیے آل نبی نے اپنی نقابت سے، نظامت سے اس منبر نور پر مجھے بیٹھنے کی دعوت دی ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کچھ بہتر کہنے کی کوشش کروں گا. تو منبر نور پر تمام معزز علماء، خطبہ، شعراء، حفاظ اور ناظرین جلسہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز سامعین کرام، اور دیکھ رہا ہوں آج الحمدللہ نبی کی آمد کے صدقے میں ان کا جشن منانے والے عاشق نبی، غلامان نبی کا ایک جمع غفیر یہاں موجود ہے جو ہم سب کے لیے نہیں اپنے آقا کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو دور و دراز بیٹھ کر سماعت کرنے والی اسلام کے عزت مآب پردہ نشین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات نے کافی دیر سے بنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت مصطفیٰ کو سماعت فرمایا. طبیعت طاہر ہوگا. بہترین انداز میں اچھے اشعار آپ نے سماعت کیا. آپ کا یہ وقت عبادتوں میں گزرا ہے. یقیناً آپ نبی کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، آپ کا چرچا اللہ فرشتوں میں آسمان پہ کر رہا ہے بلا شبہ. اب تک آپ نے دل جمعی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھیں کچھ سننے کو اور دیکھنے کو بے قرار و بےتاب ہیں. اس محفل میلاد مصطفیٰ کی میں آخری کڑی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. آپ حضرات کی دعاؤں کا طالب ہوں. آپ حضرات کی دعاؤں سے مسلسل آج 5-6 روز سے میں تقریر کر رہا ہوں. پرتاپ گڑھ گیا، الہ آباد گیا، پھر کل سوہاوا میں تھا. بتانا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ بہت تھکا ہارا ہوں آپ سے زیادہ، لیکن دیکھوں گا آج یہ کہ آپ میرا ساتھ دیتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے ساتھ دیا تو چاہے اس منبر نور سے میرا دم کیوں نہ نکل جائے، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے میں آپ کو انشاءاللہ سناتا رہوں گا. بس صرف آپ کی دعا چاہیے، اور جو کچھ پسند آئے ان الفاظ پر میں آپ سے آپ کی دعا کا طالب ہوں.
आपने नात शानदार अंदाज में समाप्त फरमाई है। मैं गुफ्तगू में वक्त को बर्बाद न करते हुए बड़ी तेजी से कुरान को आगे बढ़ाऊंगा, मगर जहां आपने एक लंबी फहरिस्त नाते मुक़द्दसा की समाप्त फरमाई है, टूटे फूटे अंदाज में दो चार बंद अशार नाते पाक के सरकारे दो आलम की बारगाह में खराज अकीदत के तौर पर मैं भी पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला पसंद करेंगे और मुझे अपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से ज़रूर नवाजेंगे। आइए उसी गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, दोनों आलम के ताजदार, अहमद मुख्तार, वजह तख्लीक कायनात, कुल मरकज़ अक़ीदत यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में आइए बड़ी तेज़ी के साथ जी लगा के लौ लगा के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादन वजूद वल करम व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरकार के आमद का चूँकि आज ये दिन है और कितना मुबारक दिन है कि आज रबीउल अव्वल शरीफ का बार जो है ये मुक़द्दस दिन भी है और आज जुमा का बड़ा फजीलत वाला दिन भी है। इसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने कुछ रोशनी डालूंगा, बातें मुझे याद आती जा रही हैं। मगर आइए नाज़िर पाक तेज़ी से समाप्त फरमा रहे हैं। सरकार की आमद का वक्त है तो मैं सरकार की विलादत के ताल्लुक से दो तीन बंद पहले नाज़िर पाक की आपकी मोहब्बतों समातों के हवाले कर रहा हूँ। मिंबर नूर से अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा का मैं मतलब जो खुसूसी उनकी तवज्जो चाहूँगा। एक बार जी लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐ आमिना बीबी, आमिना बीबी मेरे सरकार की वालिदा माजिदा है। करोड़ों माएँ हो तो ऐसी माँ पे कुर्बान जिसने ऐसा बेटा दिया कि आज जिसकी चहल पहल हमें नजर आ रही है। किसी क्या खूब कहने वाले ने कहा, कैसी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है। कैसी तवज्जो चाहूंगा, अगर शेर पसंद आए तो नबी के इश्क में आप सुभान अल्लाह जरूर कह देना। कैसी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है, कायनात का दूल्हा आज आने वाला है। जिंदा नबी के जिंदा आशिक हो आओ, अरे ऐसा तड़प कर सुभान अल्लाह कहो कि जिस जगह पढ़ी जाती है नाते शह अबरार, तशरीफ वहां लाते हैं खुद अहमद मुख्तार। कैसी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है, कायनात का दूल्हा आज आने वाला है। और आज भी मेरे आका हैं मजार में जिंदा, इसलिए तो दुनिया में उनका बोलबाला है। और अगर शेर ना समझ पाए तो आइए चलिए दाई हलीमा की बारगाह में चलते हैं। मकाम मुस्तफ़ा पूछते हैं, दाई हलीमा आप बताएं। तो साई हलीमा फरमाती है, सूरत नबी देखी कैसी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है, कायनात का दूल्हा आज आने वाला है। और आज भी मेरे आका हैं मजार में जिंदा, इसलिए तो दुनिया में उनका बोलबाला है। और सूरत नबी देखी बोलती हलीमा भी कि आमिना के प्यारे का मर्तबा निराला है। ऐ आमिना बीबी, ऐ आमिना बीबी, घर तेरे मेहमान वो आने वाला है। ऐ आमिना बीबी, ऐ आमिना बीबी, घर तेरे मेहमान वो आने वाला है। ऐ आमिना बीबी, घर तेरे मेहमान वो आने वाला है। ऐ आमिना बीबी, घर आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। आप आशिकान रसूल का मजमा है। मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इस शेर पर मेरे पास इनाम का पैसा आए ना आए, लेकिन सुभान अल्लाह आप जरूर कहेंगे अगर आप आशिक रसूल होंगे। कहते हैं फरिश्ते, कहते हैं फरिश्ते, सब मिल कर सहन मरहबा। कहते हैं फरिश्ते, सब मिल कर सहन मरहबा। कहते हैं फरिश्ते,
रसाई माँ हजरत दाई हलीमा ने परवरिश की थी। हजरत दाई हलीमा के हवाले से एक शेर आप आशिकों के नाम करता हूँ बड़े नूर से, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप झूम जाएंगे। मेरे आका वो हैं कि एक मर्तबा हजरत इब्राहीम ने कहा था, ऐ नमरूद तू सूरज को मेरा रब मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल दे, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। तो काफिर के होश हो गए थे, क्योंकि जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता है, और ये नमरूद के बस की बात न थी कि वो मगरिब से सूरज को निकाल सकता। लेकिन आओ, ऐसी शख्सियत है जिसने मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखाया, वो शख्सियत कोई और नहीं, उस शख्सियत का नाम मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे सरकार ने मगरिब से सूरज को निकाला है, और किसके लिए निकाला, बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी नूर से उलमा के हवाले से बोला। मकाम सहबा में जब हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी, तो अल्लाह के रसूल ने मगरिब से सूरज को निकाला था, डूबे हुए सूरज को मेरे सरकार ने निकाला था। तो अब शायर ने शेर को दाई हलीमा के हवाले से उस मुक़द्दस ज़ात की जिसकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि जो खाने काबा को बुतों से पाक करके फिर हम मोमिनों के लिए जिसने किबला बना दिया, उस शख्सियत के बारे में शेर हजरत दाई हलीमा के जो हवाले से आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ, समाज फरमाने। ऐ आमिना बीबी, ऐ आमिना बीबी, घर तेरे मेहमान वो आने वाला है, जो काबे को वो खाने से फिर काबा बनाने वाला है, और कहते हैं फरिश्ते सब मिलकर अहलन व सहलन मरहबा। अरे दुल्हन है ज़बीये, दुल्हन है ज़बीये, जिसके लिए वो दूल्हा आने वाला है। और शेर समाप्त फरमाने बड़ी तेजी से वो शेर दाई हलीमा के हवाले से जो आपकी मोहब्बत के हवाले कर रहा हूँ कि ऐ दाई हलीमा, सरकार को जिस नबी को लेके जा रही है उसका मर्तबा आप देखिए कि क्या था। शायर ने कहा है, ऐ दाई हलीमा, ऐ दाई हलीमा, तू ऐसे बच्चे को लेकर जाती है, ऐ दाई हलीमा, तू ऐसे बच्चे को लेकर जाती है। कौन जो चाँद को तोड़े, जो चाँद को तोड़े, गाडूबा सूरज पलटाने वाला है, जो चाँद को तोड़े, गाडूबा सूरज पलटाने वाला है, जो चाँद को तोड़े, गाडूबा सूरज पलटाने वाला है। ऐ दाई हलीमा, तू ऐसे बच्चे को लेकर जाती है। मेरे आका ने चाँद के दो टुकड़े किया था। अब जल्दी वाला तुम नबी हो तो चाँद के दो टुकड़े क्या बताऊं। ऐसा नबी हमें मिला है जिस पर सारे अंबिया को नाज है, वो नबी हमें मिला है, हम उसकी उम्मत में हैं। अब मुझे आके कहा चाँद के दो टुकड़े करो तो मैं तुम्हें नबी मानो। और कहने वाले शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा, वो चेहरे ने हुजूर से हुज्जत की आगे की, वो चेहरे ने हुजूर से हुज्जत की आगे की, तो टुकड़े करो चाँद के मानो तुम्हें नबी, और तो टुकड़े हुआ चाँद तो शर्मिंदा रह गया। वो तो इससे मनतशाओ, वो तो सिल्लो मनतशा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वो अबू जहल है कि वो अपने मुट्ठी में कंकड़ी लेकर आया था और इम्तिहान मुस्तफा का ले रहा था। एक बात बता दो, जो किसी का इम्तिहान लेते हैं वो जिंदगी भर खुद एक इम्तिहान बनकर रह जाते हैं, और जो इससे डरते हैं वो अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं, जो मोहब्बत करते हैं वो उमर फारूक बन जाते हैं, जो सब कुछ लुटा दे उसे उस्मान गनी कहते हैं, और जो रसूलुल्लाह के आगे ढाल बन जाए उसे मौला अली शुजाअत कहते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर इम्तिहान लोगे तो क़यामत तक अबू जहल की तरह इम्तिहान लेते रह जाओगे। मोहब्बत करना है तो अबू बकर की तरह अब रसूल से करो, मोहब्बत करना है तो उमर की तरह, ताकि तुम्हारा भी ग़ुलाम अबू बकर बनकर, ग़ुलाम उमर बनकर, ग़ुलाम उस्मान बनकर, ग़ुलाम अली बनकर, ग़ुलाम हुसैन बनकर तुम्हारा मर्तबा की दुनिया में बुलंद हो जाए। इम्तिहान लेकर कहीं अबू जहल की तरह न रह जाओ। इसीलिए सरकार से मोहब्बत करो और उम्मीद करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 32 दाग मुझे
चाहने वाले बैठे हैं, ये मजमा आज ये साबित कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब तक आप दिल जमी के साथ बैठे रहेंगे, मिंबर नूर से इंशाअल्लाह ताला मैं रसूल अल्लाह की विलादत के हवाले से आपको इंशाअल्लाह तकरीर सुनाऊंगा। आइए जी लगा कि उस नबी के बारगाह में दुरूद पढ़ लें तो और एक नात पाक आपके हवाले करूं, फिर उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली लगा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये नबी के चाहने वालों का सच्चे इश्क मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है, इतना फीका फीका दुरूद नहीं। अरे जरा जी लगा के दुरूद पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो बीबी कर तेरे मेहमान वो आने वाला है, और जो काबे को बुत खाने से फिर काबा बनाने वाला है। जो बिखरे हुए हैं करबल में सरकार के गुलशन के खोजे। खुदा की कसम हमारी बख्शिश कुल उम्मत की बख्शिश के लिए बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सबूत देकर कहूंगा, मैं कोई वाक़े की तकरीर नहीं करता। अगर आप कहेंगे तो मैं हर बात का हदीसों का हवाला इंशाअल्लाह दूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी और दावे से कहता हूँ कि खुदा की कसम मेरे आका का मकाम तो बड़ा अफजल आला है। वहाँ की बात छोड़ो, वहाँ के बारे में शहजादी ने यूं कह दिया कि 1000 बार वो सोजम लहनसा मुझको गुलाब या रसूल अल्लाह से नाम के गुफ्तन कमाली बेअदबी। आपका नाम तो ऐसा है कि 1000 बार मुझको अंदर से अपने मुंह को धुला जाए तो आपका नाम लेना भी अदबी होगी। मेरे सरकार का तो मर्तबा इतना अफजल वाला है। खुदा की कसम कुल उम्मत की बख्शिश के लिए करबला के मेरे हुसैन का एक सजदा काफी है। आप दिल जमी के साथ बैठे, जितनी देर तक अल्लाह उसके रसूल का जिक्र अपनी नींदों को कुर्बान करके सुनेंगे, खुदा की कसम आपका ये वक्त इबादत में शुमार होगा, इबादत में शुमार होगा। लम्हे का आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने हबीब के अमल के सदक़े में अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमाएगा। हो सकता है कि गुनाह का अमल में ज्यादा हो तो आज की शब की नेकियां अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हमारे नामे अमाल में डाल देगा और हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि नबी के इश्क़ मोहब्बत में बैठे। याद रखिएगा, एक एक लम्हा इबादत में गुजर रहा है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि खुदा की कसम कुल उम्मत मोहम्मदिया की बात करता हूँ, वो और होंगे जो भटके। हमें तो न ताक़त पे, न तक़वा पे, न ज़ुहद इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हम नाज करने वालों में हैं, हम अपने तक़वे पे नाज नहीं करते। अगर तक़वे वाले का फैसला किया जाए तो खुदा की कसम जन्नत कभी नहीं मिल सकती। रब इंसाफ करेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, रब रहम व करम करेगा तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। कुल उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए खुदा की कसम करबला का ये सजदा, तभी तो कहने वाले डॉक्टर शायर बशीर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ये शेर क्या आपके समझ नहीं आता कि हो सके तो लाइए, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा सरज़मीने करबला से ले लिया। बस एक सजदा हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा सरज़मीने करबला से ले लिया। एक सजदा सरज़मीने। और क्या इमाम हुसैन ने कहा था कि एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको महशर में पूरा करूंगा। हमारे मोहतरम वाली जनाब भाई सैयद तनवीर साहब ने एक शेर पढ़ा था, वो शेर हकीकत में लोग नहीं समझे थे। खुदा की कसम बहुत जबरदस्त वो शेर था जो रोजे के हवाले से किया था, और उसके बाद वो सजदा, उसमें इफ्तार, वो जो इफ्तार और रोजे की बात थी, मुझे आयत करीमा कुरान की याद आ गई कि ये हसनैन करीमैन निवासे रसूल ऐसे थे कि बीमार पड़ गए। अल्लाह के रसूल हज़रत फातिमा की अपनी बेटी के घर आए तो देखा निवासे बीमार पड़े हुए हैं, तो उनकी शिफा के लिए ऐ लोगों, लोग अलग अलग मन्नतें मांगते हो, आज मैं एक मन्नत कुरान की रोशनी में आपको देता हूँ जो रसूल अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए अपनी बेटी फातिमा को ताकीद फरमाई थी।
अपनी बेटी फातिमा को ताकीद, अगर मन्नतें मांगना है तो ऐसी मन्नत मांगो। हसनैन करीमैन दोनों बेटे हसन और हुसैन बीमार थे। अल्लाह के रसूल आए, फरमाया बेटी फातिमा हम मेरे नवासे मेरे बेटे की तरह हैं। फरमाया बाबा जान बीमार पड़े हुए हैं। कहा बेटी अल्लाह की बारगाह में 3 रोजों की मन्नतें मांग लो, अल्लाह तुम्हारे बेटों को शिफा अता फरमा देगा। अच्छा एक चीज बता दीजिए, मैं आपको बताता समझाता चलूंगा, मेरी तकरीर का अक्सर ये मकसद होता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कभी पढ़ूंगा, ये बात आई चलते चलते मैं आपको जगाऊंगा रात को 1 बजे तक। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मैं थकूंगा नहीं, बोलता रहूंगा इंशाल्लाह। आप ऐसे जानते रहोगे, सुभान अल्लाह कहते रहोगे ना, तो मैं थकूंगा नहीं। 6 रोज से मुसलसल तकरीर बोल रहा हूँ, मगर इंशाल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। आप जान लीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी फातिमा 3 रोजे मांग लो। 3 रोजों की मन्नत हजरत फातिमा ने मांगी, तो हजरत अली ने भी रोजा रखा, हजरत फातिमा भी रखा, और उनके घर में एक खादिमा थी हजरत फिदा रज़ियल्लाहु ताला, तो उन्होंने भी जब देखा कि मेरे आका रोजा रख रहे तो गुलाम बादी ने भी रोजा रख लिया। गिलास पानी से रोजा रखा। शाम को कहीं से भी जौ का इंतजाम हुआ। हजरत फातिमा ने रोजा रख के चक्की चलाई। कौन चक्की चला रही? शहजादी रसूल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा चक्की चला रही है। ताजदारे दोनों आलम के बेटी चक्की चला के रोटी को तैयार कर रही है। जैसे फिर चंद खजूर और वो रोटी और एक गिलास सादा पानी लेकर दस्तरखान पे बैठी, अल्लाह अकबर की सदा मस्जिद से देने वाला था। इतने में दरवाजे से दस्तक हुई। कई रोज का भूखा हूँ और मुझे उम्मीद ऐसे दर पे आया हूँ जहां से कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। मुझे मालूम है ये दामाद रसूल मौला अली शेर खुदा हसनैन करीमैन के बाबा जान अली का दरवाजा है। कई रोज से भूखा हूँ, कुछ हो तो खिला दो। हजरत फातिमा ने दस्तरखान से रोटी उठाई, हजरत अली को दिया और कहा इस फकीर को दरवाजे पे ले जाओ, दिया। कहा आप रोजे से हैं? कहा हम नबी की शहजादी हैं, हम रोजे को पानी से खोल लेंगे, ये ले जाओ, ये गरीब का हक है। दरवाजे पे आ गया। अली के घर की लाज रह जाए, ये रोटियां उसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लेंगे। 3 रोजे में मुसलसल वक्त लग जाएगा। मैं कुछ और आपके सामने अर्ज लेकर आया हूँ। मैं बताना ये चाहूंगा हसनैन करीमैन की 3 दोनों को शिफा के लिए 3 रोज के रोजों का मन्नत का रोजा रखा जाता है और 3 दिन दस्तरखान से रोटियां उठा के खरीद करी जाती है। अल्लाह इतना मेहरबान होता है कि कहा एक रुकने सिदरा जिब्रील अमीन जाओ, मेरे महबूब के घर जाओ, शहजादी रसूल के घर जाओ, अली शेर खुदा के घर जाओ, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। जो हालत रोजा में अपने दस्तरखान की रोटी एक दिन फकीर को देते हैं, एक दिन मिस्कीन को देते हैं और एक दिन कैदी को दे देते हैं और खुद रोजा पानी से खोल लेते हैं। चाहोगे उन्हें बशारत सुना दो कि दस्तरखान की रोटियां उठने से पहले अल्लाह उन्हें पसंद फरमा दिया है। आयत करीमा नाज़िल हुई है। ये है हसनैन करीमैन का घर, ये हसनैन करीमैन की जात है, ये है अहले बैत की जात, ये मेरे मुस्तफ़ा के घराने की बात है, ये मेरे नबी की शहजादी की बात है, ये उस घर घराने की बात है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है। तो आप हज़रात एक मर्तबा अब दोनों हाथ को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ आमिना बीबी, ऐ आमिना बीबी। मैं थकूंगा नहीं, मेरी आवाज़ नहीं बैठेगी। जब आप बैठ जाओ तो मेरी आवाज़ खुद बैठ जाए, और अगर आप इंशाअल्लाह ताला ऐसा हौसला देंगे तो मेरी आवाज़ खुलती चली जाएगी। आपकी दुआ है ना मेरे साथ। ऐ आमिना बीबी, घर तेरे मेहमानों आने वाला है, जो काबे को बुत खाने से फिर काबा बनाने वाला है। शहादत दी थी। मैं करबला का बयान नहीं करने आया हूँ, चलते चलते नाते पाक के हवाले से उस बात को बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए जिस तरह हम अपने घर को सजाते हैं। आप देखिए इंशाअल्लाह कितना घर सजा हुआ है, रसूलुल्लाह के आशिकों का घर है। पता चलता है कि हाँ नबी की आमद का इंतजार होगा, हम मुंतज़िर है, वो नबी आने वाला है जिसके हम उम्मती हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दीन के लिए जब के चमन सूखने लगा तो रसूलुल्लाह के घर के खानदान के 32 लोगों ने खुद करबला में शहादत दी थी, जिसमें मासूम अली असगर छिमा के भी थे, करियत जवान हज़रत अली अकबर भी थे, और तमाम उसमें ऐसे लोग शहीद थे जिनका नाम बताऊंगा, बड़ा वक्त लग जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि करबला के 72 की शहादत को मैं रायगा नहीं होने दूंगा, इसलिए
لیے اپنی جان تن من دھن کو قربان کیا تھا، تو اب شاعر اسی کربلے کے نقشے کو کھینچ کر کے اس نعت میں شعر میں پرو دیا ہے، جسے میں اپنی آواز سے آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی لگا کے کہہ دو سبحان اللہ. تو جو بکھرے ہوئے ہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے پھول سے، جو بکھرے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے پھول سے، جو بکھرے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے پھول سے. سارے مقدس ان پیارے مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا. ان پیارے مقدس پھولوں سے، ان پیارے مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا. جو بکھرے ہوئے ہیں کربل میں. میرا خیال ہے میری منڈی درد ہونے لگے گی، اور میں نہیں چاہتا قسم خدا کہ میری کرسی کے پیچھے کوئی نائب رسول، کوئی آل رسول اگر بیٹھا ہو تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور میرے برادر کبیر ہیں ابھی جناب شہنشاہ بھائی، میں نہیں چاہوں گا میرے پیچھے بیٹھے میرے آگے آ جائیں تو مجھے حوصلہ ملے گا. میرے آگے آ جائیں، میں معافی چاہوں گا، میں نہیں چاہتا میرے پیچھے بیٹھے. واہ واہ سبحان اللہ. بہت خوشی کی بات ہے، انہوں نے میری لاج رکھی، میری زبان رکھی ہے، میرے بڑے بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرمائے. بالکل پیچھے نائب رسول بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا، اور آل رسول ہو تو بالکل اچھا نہیں لگتا. بھائی جنہیں آگے رہنا ہے وہ پیچھے رہے تو اچھی بات نہیں. یہ میرا اپنا عقیدہ ہے. اس ممبر نور سے خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، لوگ اپنی اپنی ذہنیت سے کچھ بھی سمجھ لیں کہ حافظ جی مولانا صاحب مطلب لوگوں کی خیرخواہی، لیکن خدا کی قسم نہیں. سچی بات یہی ہے کہ آل نبی ہمارے سر کا تاج ہے. خدا کی قسم ممبر نور سے خدا کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اے لوگوں آل نبی کو اپنے سر کا تاج بنا لو. خدا کی قسم دنیا میں بھی سر بلندی ملے گی، آخرت میں تو ہنستے ہنستے جنت ملے گی. جنت کی تمہیں دعا نہیں کرنا ہے، جنت کی طلب نہیں کرنا ہے. جنت خود کہے گی اے اللہ اسے بھیج دے جو تیرے نبی کا چاہنے والا ہو. اور کون جائے گا؟ تجھ سے کیا جنت سے مطلب چل بہانی ہو، تجھ سے اور جنت سے مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بہانی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. نماز پڑھتا رہے، تجھے نماز کے انصاف پر جنت ملے گی تو ملے گی. ہمیں امید ہے، ہمیں عبادتوں میں نہیں دامن مصطفیٰ ملا ہے، اسی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے. ہاں خدا کی قسم. تو یہ جان لیجیے بڑی ذمہ داری سے سننے کو کہہ رہا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بکھرے ہوئے ہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے پہنچے، جو بکھرے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے پہنچے. ارے ان سارے مقدس، ان سارے مقدس، ان پیارے مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا. ان پیارے مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا. اور مومن موت کا استقبال کرتا ہے. بے شک مومن. اچھا ایک بات بتا دو، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے نا؟ موت سے ڈر لگتا ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں بہت لوگ ہم عیش و عشرت کریں، اچھے مکان بن گئے، گاڑی خریدا ہے، بہترین گھر میں انتظام ہے، صوفے لگے ہیں، اس میں عیش و عشرت کے ہمارے کچھ اور اچھے دن گزرے. مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے نا؟ لیکن میں کہتا ہوں مومن موت کے لیے نعمت ہے، زحمت نہیں ہے. مومن موت کا استقبال کرتا ہے. تو اب ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بہت زیادہ ہے. ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے، پروردگار ڈر لگتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، آج ایک کچھ بات میں کہوں گا، کچھ کہلواؤں گا.
तकरीर सुनने का मतलब थोड़ी ना कि सुन के आप मेरी वाहवाही सुना करें कि मौलाना असलम ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी, बल्कि मैं आज आपको कुछ बता के और समझा के भेजना चाहूँगा। आप नबी से मोहब्बत करना चाहते हो और करते हो ना, तभी तो बैठे हो ना। जरा तवज्जो चाहूँगा, मोहब्बत करते हो ना, चाहते हो ना, और नबी से कितनी जल्दी मुलाकात हो जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, मरहबा, मरहबा। कसम खुदा की ईमानदारी से बोलना, आज की तकरीर मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग मरते दम तक नहीं भूलेंगे और मुझे दुआ जरूर देंगे। आज दुआ में जबरदस्ती आप लोगों से ले लूंगा। दिल से बोलना कि कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बहुत जल्द मुझे रसूल अल्लाह से मेरी मुलाकात हो जाए। हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम आज का वक्त ये सबको याद रहेगा। अब आप समझते हो, आपने हाथ उठाया है तो आपने कहा है परवरदिगार मौत से नहीं डरते हैं, अगर अभी आना तो आ जाए, क्योंकि इसी वक्त रसूल अल्लाह से मिलना चाहते हैं। तेरे नबी के दीदार के मुश्ताक है, तलब बर्दाश्त नहीं होती मेरी मानो। यार से मिलना है, अपने नबी से मिलना है। अब तू मुझे 1 साल के बाद मिलाएगा, 2 साल के बाद मिलाएगा, ऐशो इशरत के 25-50 साल गुजरने के बाद मिलाएगा। ये मोहब्बत का तकाजा है कि इस महल में 50 साल रह लूं, उसके बाद नबी से मुलाकात हो। इश्क तो ये कहता है कि अगर कहीं भी मिल जाए तो नबी का अभी अभी दीदार हो जाए ना। तो अब बता दो, ईमानदारी से बता दो कि नबी से मुलाकात अब हम सब की कब होगी। नबी से हम सब की मुलाकात कब होगी। अगर किसी का सहल काम करता हो तो वो बोल दे, बेधड़क बोल दे। ये गांव की महफिल है, इंशाअल्लाह यहाँ इस्लाह करनी चाहिए। क्या आप इंतजार करोगे कि कयामत में मैदान महशर में मैं नबी का दीदार करूं? नहीं ना। एक मंजिल है जो आपको कभी भी नबी से मिला सकती है, बस एक मंजिल। एक पर्दा हल्का सा है और वो पर्दा मौत का है। अगर अभी आ जाए तो सुबह फजर के बाद नबी से कब्र में मुलाकात हो जाए। तो नबी से मिलने के लिए मरना पड़ा। तो बताओ, नबी से मिलना है तो मौत से घबराओगे कि मौत को गले लगाओगे? मौत आ, तू गले लगा दे, मैं अपने इसके नबी को गले लगाना चाहता हूँ। जब तो तू आएगी तभी तो नबी का दीदार होगा। जब मुझे तू यहाँ से लेकर चलेगी तो कब्र में तभी तो मुस्तफा के विशेष सेवा का दीदार होगा। तो मौत को गले लगाना होगा। रब फरमाता है, मौत मेरे बंदों के लिए ज़हमत नहीं है, रहमत है, नेमत है। इसलिए आशिक़े रसूल मौत का इस्तेमाल करते हैं कि खुदा की कसम वो करीब घड़ी आ गई कि जिसके लिए तड़पते थे, मौत आ गई तो लम्हे में कब्र में मुस्तफा का दीदार। सुभान अल्लाह। और तीसरा सवाल होगा, माको तकुन फिशाने हाज़र रजुल। मुनकर नकीर ये जो सवाल करेंगे इन्हें तुरंत जब तीसरा सवाल कब्र में करेंगे तो कहेंगे, ए मुझे बता इस मर्द के बारे में तेरा क्या ख्याल है। आशिक़े नबी कहेगा, गुलामे नबी कहेगा, चाहने वाला कहेगा, हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाएगा और कहेगा, यही को याद आ जाती है, बरेली के तासार की याद आ जाती है, हम सुन्नत के इमाम की याद आ जाती है। बरेली के तासार मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, आज तक किसी ने वसीयत नहीं की थी, आला हज़रत ने की थी। एक वसीयत की थी, ऐ लोगों सुनो, जब इमाम मोहम्मद रज़ा मर जाएगा उसे कब्र में सुलाओगे, उसकी कब्र को इतनी गहरी करना कि जब उसका आखिर कब्र में आए तो अहमद रज़ा सोया होगा। वो अहमद रज़ा जो जिंदा दुनिया में जिंदा नबी में सलाम पढ़ता था, नबी कब्र में आएंगे, अहमद रज़ा खड़ा होकर कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमे हस्ने हिदायत बेला को सलाम, तालिबी कब्र में असमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत बेला को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह।
या रसूलल्लाह मरहबा अजीज सामने इश्क हो तो ऐसा हो, डूब जाओ यार की मस्ती में ऐसा कि खुद का होश भी ना रहे। और इसी में डूब जाने का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसी मस्ती में डूब जाने का नाम हजरत उमर फारूक है। वरना उमर फारूक से पूरा मक्का थर्राता था। जब ईमान ले आए तो उमर फारूक खुद कांपा करते थे, खुद डरते थे। आए है खुदा की कसम, हजरत उमर फारूक वहां गए कि मदीने की मक्के की जिस गली से गुजरते थे खुदा की कसम शैतान अपना रास्ता बदल देता था। उमर आ रहे हैं, रसूल फरमाते मेरे बाद नबी कोई होता उमर नहीं होता। खत्म हो गया, नेटे खत्म हो गया। तो अब शेर लाते पाक का समाज फरमा ले कि मौत से अब हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्द रसूल अल्लाह का दीदार करना है। हमें बहुत जल्द रसूल अल्लाह